رحیم یار خان بہاولپور ملتان سمیت جنوبی پنجاب کے دیگر علاقوں میں سورج سوا نیزے پر آ گیا۔ زمین تپ کر تنور میں تبدیل ہونے لگی۔ آج میاں والی کا درجہ حرارت زیادہ سے زیادہ 49 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ رحیم یار خان کا 46، بہاولپور کا درجہ حرارت 45 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ملتان، ڈی جی خان اور میاں چنو کا درجہ حرارت 44 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا پہنچا۔ شدید گرمی کی وجہ سے معمولات زندگی بری طرح متاثر ہو رہے ہیں۔ شہری گھروں میں محدود ہو گئے، سڑکوں پر ٹریفک نہ ہونے کے برابر ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ ہیٹ ویو کی موجودہ لہر 20 مئی تک جاری رہے گی۔ میاں والی، رحیم یار خان بہاولپور ملتان سمیت جنوبی پنجاب کے دیگر علاقوں میں سورج سوا نیزے پر آ گیا۔ زمین تپ کر تنور میں تبدیل ہونے لگی۔ آج میاں والی کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 49 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ رحیم یار خان کا 46، بہاولپور کا درجہ حرارت 45 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ملتان، ڈی جی خان اور میاں چنو کا درجہ حرارت 44 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا پہنچا۔ شدید گرمی کی وجہ سے معمولات زندگی بری طرح متاثر ہو رہے ہیں۔ شہری گھروں میں محدود ہو گئے، سڑکوں پر ٹریفک نہ ہونے کے برابر ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ ہیٹ ویو کی موجودہ لہر 20 مئی تک جاری رہے گی۔ ملتان میں گرمی کی شدید لہر نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ محکمہ موسمیات نے 15 سے 20 مئی تک ہیٹ ویو الرٹ جاری کر دیا ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ اس دوران درجہ حرارت معمول سے کہیں زیادہ رہنے کا امکان ہے۔ ملتان میں گرمی کا زور ٹوٹنے کا نام نہیں لے رہا۔ محکمہ موسمیات کے ہیٹ ویو الرٹ کے پیش نظر ریسکیو آپریشن آفیسر انجینئر بلال نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ غیر ضروری سفر سے گریز کریں اور خاص طور پر بچے، بزرگ اور بیمار افراد گھروں سے باہر نہ نکلیں۔ ریسکیو حکام کا کہنا ہے کہ شہری پانی کا زیادہ استعمال کریں، ہلکے کپڑے پہنیں، سر ڈھانپ کر رکھیں اور ممکنہ حد تک سائے میں رہیں۔ ملتان میں گرمی کی شدید لہر نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ محکمہ موسمیات نے 15 سے 20 مئی تک ہیٹ ویو الرٹ جاری کر دیا۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ اس دوران درجہ حرارت معمول سے کہیں زیادہ رہنے کا امکان ہے۔ ملتان میں گرمی کا زور ٹوٹنے کا نام نہیں لے رہا۔ محکمہ موسمیات کے ہیٹ ویو الرٹ کے پیش نظر ریسکیو آپریشن آفیسر انجینئر بلال نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ غیر ضروری سفر سے گریز کریں اور خاص طور پر بچے، بزرگ اور بیمار افراد گھروں سے باہر نہ نکلیں۔ ریسکیو حکام کا کہنا ہے کہ شہری پانی کا زیادہ استعمال کریں، ہلکے کپڑے پہنیں، سر ڈھانپ کر رکھیں اور ممکنہ حد تک سائے میں رہیں۔ خانیوال میں بھی درجہ حرارت بڑھنے لگا۔ گرمی سے انسانوں کے ساتھ ساتھ پرندے بھی پریشان۔ پرندوں نے چھاؤں میں اپنا بسیرا کرنے کے لیے سایہ دار جگہوں کی تلاش شروع کر دی ہے۔ خانیوال میں بھی درجہ حرارت بڑھنے لگا۔ گرمی سے انسانوں کے ساتھ ساتھ پرندے بھی پریشان۔ پرندوں نے چھاؤں میں اپنا بسیرا کرنے کے لیے سایہ دار جگہوں کی تلاش شروع کر دی۔ جنوبی پنجاب کے دیگر شہروں کی طرح خانیوال میں سورج کا پارا ہائی۔ ایسے میں گرمی سے بچاؤ کے لیے جہاں انسانوں نے احتیاطی تدابیر اختیار کر لی ہیں، وہیں پرندوں نے بھی گرمی سے بچنے کے لیے سایہ دار جگہوں پر بسیرا کرنا شروع کر دیا ہے۔ وائلڈ لائف کے ماہر ڈاکٹر دلاور حسین کا کہنا ہے کہ گرمی کے باعث پرندوں میں بھی پانی کی کمی سے ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے، جس سے بچاؤ کے لیے پرندے پانی اور سایہ دار جگہوں کو تلاش کرتے ہیں۔ گرمیوں کے موسم میں چونکہ صورتحال یہ ہوتی ہے کہ ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے، پانی کی جسم میں کمی ہو جاتی ہے، تو اسے اس وجہ سے گرمی سے بچنے کے لیے یہ درختوں میں چلے جاتے ہیں تاکہ دھوپ سے متاثر نہ ہوں۔ گرمی میں پرندے ٹھنڈے مقام پر اپنے گھونسلے بناتے دکھائی دیتے ہیں۔ پرندوں کے لیے درختوں کا سایہ کسی نعمت سے کم نہیں، جبکہ پانی کی دستیابی پا کر پرندے اپنی مخصوص آواز میں دوسرے پرندوں کو بھی اس بارے آگاہ کرتے ہیں۔ شہری کہتے ہیں کہ پرندوں کو گرمی سے بچانے کے لیے زیادہ سے زیادہ درخت لگانے کی ضرورت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم پرندوں کی بقا کے لیے لازمی اور ضروری انتظامات کریں، ان کے پانی پینے کے لیے، ان کے گھونسلوں کے لیے ہر شخص کو انتظامات کرنے چاہیے۔ اکثر پرندے جھنڈ کی شکل میں سایہ دار جگہوں پر رہتے ہیں۔ ایسے میں پرندے خود کو محفوظ سمجھتے ہیں۔ گرم موسم میں مخصوص پرندے ہی دکھائی دیتے ہیں۔ زیادہ تر پرندے ٹھنڈے مقامات کی طرف ہجرت کر جاتے ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ محمد ندیم مغل، روہی، خانیوال۔ بہاولپور میں گرمی کی شدت بڑھنے پر دکانداروں کا احسن اقدام۔ راہگیروں کے لیے شکر اور تخمے بلنگو کے شربت کی سبیل لگا دی گئی۔ گرمی دور بھگانے کے لیے شربت پینے کی جگہ پر شہریوں کا رش لگ گیا۔
बहावलपुर में गर्मी की शिद्दत एक बार फिर बढ़ने लगी। टेम्परेचर ऊपर से ऊपर ही जा रहा है। धूप की शिद्दत इतनी है कि 44 सेंटीग्रेड भी 48 की तरह महसूस होता है। ऐसे में दुकानदारों ने अहमदपुरी गेट पर राहगीरों के लिए शक्कर और तुख्मे बिलिंगू के मीठे शरबत की सबील लगाई। बहावलपुर का इतना बड़ा टेम्परेचर है, आज 45-46 का टेम्परेचर था, आवाम परेशान थी। आवाम को इन्होंने फी सबीलिल्लाह पानी पिला रहे हैं ठंडा, अल्लाह इनको अजर देगा। मेरी तमाम बहावलपुर के दुकानदारों से गुजारिश है कि वो सारे अपनी दुकानों पे जितनी उनकी हैसियत है उतना ठंडा पानी रखें या मीठा पानी दें। मीठा पानी पीने के लिए राहगीरों का दुकान पर रश लग गया। राहगीरों का रोही से गुफ्तगू में कहना था कि इतनी शिद्दत की गर्मी में जहां आपको सादा पानी मिलने की उम्मीद न हो, वहां ठंडा मीठा पानी पीने को मिल जाए तो क्या ही बात है। मैंने खास तौर पे अपने ताजा दुकानदार मेमिजार को मैंने रिक्वेस्ट की है, जगह जगह पे कूलर रखे, जगह जगह पे सफीले लगाए। ये अली भाई हो गए और नबील भाई हो गए, इन्होंने मेरी रिक्वेस्ट पे आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे सफील लगा दिए ताकि इतनी हार्ड हमारे माएँ हमारे बहनें जो बुजुर्ग है जाते उनको पानी नहीं मिलता, ये जगह जगह पे हमने सफील लगा दिए। देख रहे सामने कूलर भी लगा पड़ा है, हमने सफील शुरू कर दिया है। दीन इस्लाम में खिदमत खल्क को बड़ा मुकाम हासिल है और प्यासे लोगों को मीठा ठंडा पानी पिलाने से अल्लाह को बेहतर तौर पर राजी किया जा सकता है। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ महमूद जहीर, रोही, बहावलपुर। रहीम यार खान में गर्मी का पारा 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। शहरियों ने नेचुरल एनर्जी ड्रिंक सत्तू के शरबत से गर्मी का तोड़ निकाल लिया। सत्तू बच्चों बड़ों सभी का पसंदीदा मशरूब है। शहरी कहते हैं शदीद गर्मी में सत्तू ठंडा, फरहत बख्श और तवानाई देने वाला शरबत है। रहीम यार खान में सूरज फिर आंखें दिखाने लगा। ऐसे में शहरियों ने शदीद गर्मी का तोड़ निकाल लिया। शहरियों ने नेचुरल एनर्जी ड्रिंक सत्तू का शरबत पीने के लिए ठेलों का रुख कर लिया। गली मोहल्लों, चौराहों और बाजारों में सत्तू के ठेलों पर रश बढ़ गया। दुकानदार कहते हैं देसी तरीके से तैयार करदा सत्तू लीमू, काला नमक और चीनी के इम्ताज से मजीद जायकेदार हो जाता है। सत्तू गर्मी में जिस्म को ठंडक देता है और पानी की कमी से बचाता है। शदीद गर्मी में सत्तू पीने वाले अफराद की तादाद में भी इजाफा हो गया है। मेरा काम ठीक चलता है। गर्मियों में ये सत्तू होता है जौ से तैयार होता है और ये ठंडा होता है, मैदे के लिए भी बेहतरीन होता है और जिगर की मसाने की गर्मी दूर करता है। शहरियों का कहना था शदीद धूप में सत्तू का ठंडा, फरहत बख्श और तवानाई बख्श शरबत राहत का जरिया बन जाता है। नौजवानों से लेकर बुजुर्गों तक सभी ने सत्तू के शरबत को गर्मी का इलाज करार दे दिया। गर्मी आज बहुत ज्यादा है, 46 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है रहीम यार खान में और एनर्जी को बहाल करने के लिए सत्तू पी रहे हैं। नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं और ये बहुत अच्छा है गर्मी के तोड़ के लिए। सत्तू है ये एक तो आपकी गर्मी को दूर करता है और बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। बाकी मशरूबात अगर आप पीते हैं तो उसमें आपको पता है कि इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, तो इस वजह से मेरे ख्याल से गर्मी का बेहतरीन तोड़ यही है। शहरियों का मजीद कहना था कि सत्तू न सिर्फ हमारी रिवायात का हिस्सा है बल्कि शदीद गर्मी के खिलाफ सबसे मौसर दिफा भी है। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही, रहीम यार खान। मुल्तान में गंदम की कीमत में इजाफा होने लगा। ओपन मार्केट में फी मन गंदम 2450 रुपए तक फरोख्त होने लगी। व्यापारी हजरात का कहना है कि फ्लोर मिल्स में गंदम की खपत में इजाफा हुआ है जिसके बायस रेट बढ़ा है। मुल्तान में गंदम की कीमत में तेजी आ गई। ओपन मार्केट में फीमन गंदम 2450 रुपए तक फरोख्त होने लगी। व्यापारी हजरात का कहना है कि फ्लोर मिल सेक्टर में गंदम की डिमांड में इजाफा हो रहा है। जिन लोगों ने गंदम जखीरा की वो फायदे में रहे। फ्लोर मिल्स में गंदम की खपत में इजाफा होने के बायस रेट बढ़ा है। गंदम की कीमत में मजीद इजाफा होने का भी इम्कान है। मिलों का रेट ऊपर हो गया, पीछे महंगी हो गई। आपने कितने से बेचनी शुरू की थी? 2100 तक। अच्छा, अब 2400 रुपए में बेच रहे हैं। हाँ जी। तो गाहक आ रहे? गाहक नहीं आ रहा। की वजह? गाहक कह रहे हैं और आयात करो। खरीदारों का कहना था कि गंदम खरीदने आए हैं मगर गंदम की कीमत में इजाफा हो चुका है। तनख्वाह के इंतजार में थे, अब तनख्वाह मिली तो गंदम खरीदने आए हैं। हम तो कहते हैं कुछ सस्ती हो जाए, वही 2200 रुपये रेट सही था। अब ये 2450 हो गई है। अब हम सोच रहे हैं लें न लें, इसी सोच में खड़े हैं। खरीदारों का मजीद कहना था कि चंद रोज पहले तक फी मन गंदम 2000 रुपए तक दस्तयाब थी। अब गंदम 2400 रुपए से जायद कीमत में फरोख्त हो रही है। कैमरामैन ताहिर के साथ जुनेद अनवर, रोही, मुल्तान। शहरी औलिया में सब्जियों और फलों की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। सरकारी निर्खों और मार्केट रेट में भी खुला तजाद है। खुद साख्ता महंगाई पर इंतजामिया ने चुप साध ली। अदरक की सरकारी कीमत में मुसलसल इजाफा होने लगा।
मुल्तान में सब्जियों और फलों के दाम बेलगाम, सरकारी नरखों और मार्केट रेट में भी वाजिया फर्क। जिली इंतजामिया खुद साख्ता महंगाई पर काबू पाने में नाकाम। सरकारी नर्खनामा में प्याज 22, आलू 40 और टमाटर 24 रुपए फी किलो मुकर्रर। मार्केट में प्याज 40, टमाटर 50 और आलू 60 रुपए फी किलो फरोख्त। अदरक की सरकारी कीमत में मुसलसल इजाफा। सरकारी रेट लिस्ट में अदरक 600 और लहसुन 220 रुपए फी किलो मुकर्रर। मार्केट में अदरक 700 और लहसुन 300 रुपए फी किलो फरोख्त। शिमला मिर्च 130, भिंडी 140 और बैंगन 100 रुपए फी किलो दस्तयाब। घिया तोरी 140, बंद गोभी 120, अरबी 300 रुपए फी किलो फरोख्त हो रही है। में खुबानी थी 600, आलू बुखारा 1200 और सेब 400 रुपए फी किलो फरोख्त। चीकू 400, फालसा 200 और तरबूज 50 रुपए फी किलो दस्तयाब है। लोफाट 350 और खरबूजा 150 रुपए फी किलो, जबकि केले 300 रुपए फी दर्जन हैं। उन्होंने आला हुकाम से सब्जियों और फलों की कीमतें कम करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ राना बिलाल रोही, मुल्तान। जनूबी पंजाब के अवाम को मिलावट से पाक खुराक की फराहमी का मिशन। पंजाब फूड अथॉरिटी की मुल्तान, बहावलनगर और विहाड़ी में मिलावट माफिया के खिलाफ कार्रवाइयां। नाकिस और गैर मयारी अशिया मौका पर तलब, मुख्तलिफ फूड यूनिट्स को लाखों रुपए के जुर्माने भी किए गए। पंजाब फूड अथॉरिटी मिलावट माफिया के खिलाफ इन एक्शन। एडिशनल डायरेक्टर ऑपरेशंस मुल्तान मोहम्मद आमिर इफ्तिखार का चार्ज संभालते ही मुख्तलिफ बेकरियों और मुतादिद फूड पॉइंट्स का मुआयना। 100 लीटर मिलावटी मशरूबात, 5 किलो से जायद खुले और ममनुआ अज्जा तलफ। एडिशनल डायरेक्टर का कहना था कि खिलाफ वर्जियों पर फूड बिजनेस मालकान को 3 लाख से जायद जुर्माने किए गए हैं। मिलावट और जाली खुराक का खात्मा अव्वलीन तरजीह है। बहावलनगर में पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाइयां जारी। डायरेक्टर ऑपरेशन साउथ शहजाद खान मक्सी टीम के हमरा फील्ड में मसरूफ अमल। 2500 गैर मायारी कुल्फियां, 100 लीटर शुगर सिरप, 80 किलो मिलावटी बर्फी तलफ। पापड़ फैक्ट्री, बेकरी यूनिट और कुल्फी यूनिट को 1,60,000 रुपए के जुर्माने आयद। कार्रवाइयां नूरकोट स्मार्ट हाउसिंग स्कीम आरिफवाला रोड पर की गईं। डीजी फूड अथॉरिटी का कहना था कि गैर मायारी खुराक बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाइयां की जा रही हैं। विहाड़ी में पंजाब फूड अथॉरिटी का ग्रैंड ऑपरेशन। डायरेक्टर ऑपरेशन जुबैर एजाज ने टीम के हमरा स्नैक्स यूनिट्स, आइसक्रीम शॉप समेत 6 फूड पॉइंट्स का मुआयना किया। इस दौरान 450 मिलावटी कुल्फियां, 100 लीटर मिलावटी दूध, 120 किलो नाकिस खुराक और 40 किलो चाइना नमक तलफ कर दिया गया। खिलाफ वर्जियों पर 6 फूड पॉइंट्स को 3 लाख रुपए के जुर्माने भी किए गए। बहावलपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के हजारों वकला और साइरीन कोर्ट टिकट्स न मिलने पर परेशान। 1 माह में टिकटें न होने से हजारों केसेस अल्तवा का शिकार हो गए। जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बार ने कोर्ट टिकट्स न मिलने पर डीओ अकाउंट्स को खत लिख दिया। बावलपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से रोजाना 2 से 2,500 वकला का वास्ता पड़ता है। वकला और साइलीन के तमाम केसेस की इब्तिदा कोर्ट टिकट से होती है, लेकिन गुज़श्ता 1 माह से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बार में कोर्ट टिकट्स मुयस्सर नहीं। जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बार मलक इसहाक ने कोर्ट टिकट्स की अदम दस्तयाबी पर डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिसर को खत लिख दिया। ये कोर्ट फीस की टिकटें हैं, जिसकी वजह से 2 रुपए, 3 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए वाली टिकट है, इसकी वजह से नकूल नहीं मिल रही। अपीलें हमारी पेंडिंग है, अपीलें दायर नहीं हो सकती, नकूलात नहीं मिल रही। काफ़ी सारे साइलें हैं, कम से कम 2000 के तो यहाँ वकला है, हज़ारों की तादाद में लिटिगेंट्स यहाँ आते हैं। बहुत मसाइल थे, इसलिए आज मैंने डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर को भी लेटर जारी किया है और डिस्ट्रिक्ट सेशन साहब के पास भी रिक्वेस्ट भिजवाई है। डेली की बेसिस पे कम से कम सैकड़ों में दायरी होती है, सैकड़ों में अपीलों की दायरी होती है। वो तमाम काम रुका हुआ है। इस वक्त भावलपुर बार में कई मामलात हैं जो रुके हुए हैं, सिर्फ इन टिकटों की वजह से। हमारे क्लर्क हजरात परेशान है, वकला हजरात परेशान है। सिर्फ कोर्ट टिकट्स न मिलने से बहावलपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 1 माह में हजारों केसेस ताखीर का शिकार हैं। वकालत नामे से केसेस के नकूल की कापी की फराहमी तक हर जगह कोर्ट टिकट्स की जरूरत होती है, लेकिन कोर्ट टिकट्स मुयस्सर न होने पर वकला और साइलीन परेशान हैं। हमारी दायरी के लिए जो है ना टिकट कोर्ट टिकट्स जो हैं उसके लिए जो है ना बड़ी मुश्किलात का सामना है और ना ही हाई कोर्ट से अवेल हो रही हैं। मेरे आला हुकाम से इस्तदा है कि ये जो है ना टिकट का जो मामला है वो फिल फौर हल किया जाए। सर रिटर्न वाली क्या नहीं मिल रहे, कम 100 रुपया पे भावे दायरी आए भावे नकल फार्म है जी किस्म दी भी है, कम 100 रुपया पे। लिहाजा मेहरबानी करके ना कुछ चाहिए कि टिकट अलॉट कर दें। आज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सबसे जो मेन इशू है इस वक्त जो है टिकट्स का ना होना है, जिस वजह से दायरी ब्रांच में भी अफेक्टेड है, वकालतनामा भी देना अफेक्टेड है और सब कुछ सुबह से लेकर तमाम वकला हजरात परेशान हैं और जजेस साहब भी इस चीज को इंडोर्स कर रहे हैं। वकला ने बरवक्त इंसाफ के लिए कोर्ट टिकटें फौरी फराहम करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ महमूद जहीर, रोही, बहावलपुर।
मुल्तान ज़िले और वासा इंतजामिया की गफलत या मुबैना नाअहली कला कहना कासिम बाग पर एक अरसे से बने क्राउन फेलियर्स का मुरम्मती काम शुरू न किया जा सका। तफरीही मकाम पर क्राउन फेलियर्स का बनना और उनका मुरम्मती काम शुरू न होना इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। मुल्तान ज़िले और वासा इंतजामिया शहर में बने क्राउन फेलियर्स की मुरम्मत करने में नाकाम। मेन रोड किला कोना कासिम बाग पर एक साथ 4 क्राउन फेलियर बने हुए हैं। इंतजामिया अभी तक क्राउन फेलियर्स का मुरम्मती काम शुरू नहीं कर सकी। अहम तरीन तफरीही मुकाम पर क्राउन फेलियर बनना और इसका मुरम्मती काम शुरू न होना इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। क्राउन फेलियर के बाइस सियाहों का गुजरना मुश्किल हो गया। सियाह कहते हैं कि कासिम बाग के बिल्कुल सामने क्राउन फेलियर की मुरम्मत न होना इंतजामिया की गफलत को जाहिर करता है। वो एक हफ्ते से इस क्राउन फेलियर को देख रहे हैं। इधर ग्राउंड फेलियर हुआ है और ये काफी अरसे से इधर ही मौजूद है और मैं तकरीबन 2-4 हफ्ते पहले आया था, उस टाइम भी यही कंडीशन थी रोड की। तो बहुत से लोग इधर से जाते हैं, कोई गिर जाता है, कुछ हो जाता है, यानी कि इस वजह से चोट आ जाती है। ये इनको चाहिए कि इनको सेट करें, मुरम्मत करें। सियाहों का कहना था कि क्राउन फेलियर दूर से तो नजर नहीं आता, मगर यहाँ दरख्त की शाखें काट कर लगाई गई हैं। इंतजामिया ने ना कोई हिफाजती हदायत जारी की हैं और ना कोई बोर्ड लगाया गया है। ये तो काफ़ी टाइम से ये ऐसे ही है और अपना यहाँ हादसात वगैरह भी होते रहते हैं। रात के टाइम अक्सर लोगों को नज़र नहीं आता, गाड़ियाँ वगैरह, बच्चे वगैरह गिरते हैं, ठीक है ना। तो हुकूमत इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रही। काफ़ी टाइम से ये ऐसे पड़ा। हुकूमत को चाहिए कि इसके खिलाफ एक्शन वगैरह ले और इसको जल्द अज जल्द ये सही करवाया जाए। क्राउन फेलियर सियाहती मकाम को खूबसूरती में कमी का बाइस है। इंतजामिया जल्द अज जल्द इन क्राउन फेलियर को मुरम्मत करे। कैमरामैन जैन सुहेल के साथ सुलेमान जमीर, रोही, मुल्तान। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर अवामी मसाइल हल करने का मिशन मुख्तलिफ इलाकों में इंतजामी और पुलिस अफसरान की तरफ से खुली कचहरियां लगाने का सिलसिला जारी है। राजनपुर में पुलिस के शोहदा और गाजियों को मेडल्स देने के लिए भी तकरीब सजाई गई। कमिश्नर बहावलपुर मुसरत जमी का हारून आबाद का दौरा, डीसी बहावल नगर जुल्फिकार अहमद भुवन और एसी हारून आबाद भी हमराह। कमिश्नर बहावलपुर ने मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों का जायजा लिया। उन्होंने THQ अस्पताल का भी विजिट किया और मरीजों से मसाइल पूछे। कमिश्नर की सरबराही में खुली कचहरी का इनेकाद भी किया गया। DPO मुजफ्फरगढ़ डॉक्टर रिजवान अहमद की थाना खैरपुर सादात में खुली कचहरी। DSP अलीपुर बख्त नसर भी हमराह थे। TPO ने साइलिन के मसाइल सुने और हल के लिए मौका पर अहकामात जारी किए। उन्होंने मुकदमे का मुलजिम रिहा करने पर मुहर्रर थाना की सरजनश की और 1 घंटे में मुलजिम को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। उन्होंने दरियापार कच्चा चौकी इंचार्ज को 50,000 रुपए इनाम देने का ऐलान किया। साइलिन के मुतालबे पर DPO का कहना था कि चौकी शाहपुर ओल्ड को जल्द बहाल कर दिया जाएगा। DPO भकर शहजाद रफीक ने मुख्तलिफ इलाकों में खुली कचहरियों का इनेकाद किया। चक नंबर 36 अनारशाह दलीवाला में खुली कचहरियां लगाई गईं। DPO ने शहरियों के मसाइल सुनकर हल के लिए अहकामात जारी किए। राजनपुर पुलिस के शोहदा और गाजियों को मेडल्स देने के लिए तकरीब का इनेकाद। तकरीब में डिप्टी कमिश्नर शफकतुल्ला मुश्ताक और DPO फारूक अमजद ने भी शिरकत की। मेंबरान सूबाई असम्बली अब्दुल अजीज खान दरेशिक, खिजर हुसैन मजारी और परवेज इकबाल गुरचानी भी तकरीब में शरीक हुए। तकरीब में शोहदा के वरसा को गोल्ड मेडल दिए गए। DPO फारूक अमजद का कहना था कि राजनपुर पुलिस पूरे मुल्क की पुलिस से ज्यादा बहादुर है। तकरीब में पुलिस गाजियों के सीनों पर मेडल्स लगाए गए। खानेवाल में अमन अमान की फजा कायम रखने के लिए DPO ने जिलाई अमन कमेटी के मेंबरान से मीटिंग की, जिसमें ईद उल अजहा पर और मुहर्रम उल हराम में अमन भाईचारे की फजा कायम रखने पर जोर दिया गया। DPO इस्माइल खाड़क ने कहा कि अमन कमेटी अमन अमान के कयाम में अहम किरदार अदा करती है। उलमाए कराम प्यार, मोहब्बत, भाईचारे का दर्स दें।